Bikaner, a large part of the Great Indian Thar Desert of Rajasthan, continues to be one of the least developed districts with poor socio-economic indicators. Predominantly, Bikaner is a desolate region of shifting sand dunes, scrub vegetation with scanty rainfall. Its extreme climatic conditions, difficult geographical terrain and recurrent drought make the lives of the people very challenging. The specially abled people in this region of Rajasthan form a small part of the vulnerable and marginalized section of the communities. Social exclusion and limited access to economic security schemes, limited livelihood opportunities are some of the many major problems for these people, adding to their vulnerability, leading to poor social and economic development for this community. Considered unproductive by the society, they remain confined in their house for routine activities with higher dependency on their family members. Disability is the consequence of poverty, according to the new United Nations Review of Disability and the Millennium Development Goals. It is estimated that the disabled people make up roughly 15% of the world population, but around 20% of the world's poorest citizens. मेरे एक परिवार में 7 बच्चे हैं, 4 लोगों को नहीं दिखता है। पालाराम विकलांग, बोंगरी विकलांग, और 5 बायां लड़कियां देखी विकलांग, 2 लड़का है विकलांग, परिवार सोई विकलांग है बेटा। As per the census of India in 2001, there are over 1.4 million people with disabilities in Rajasthan, and the number in Bikaner alone is over 30,000. मोने ठाको लागो ने 600-700 साल रहा यानी बेवने टुरने लगा नहीं जनी और पतो लागो भाई बच्चा तो अंधा है और घा फोड़ा इसका ना देखा सके ना कोई बैठ सके या तो अड्डी पड़ी रहे परेशानी है ठड़ी थी फिरे हालत खस्ता ही रही दवाई लगावा डॉक्टर ने दवाई लावा लगावा. Suffering with disabilities ranging from locomotors, color blindness and many of them are children under the age of 19. सबसे जिसे तो घरे मरते थे धोरिया चक्कर 20-11 कोई करो भाई माँ कोई डॉक्टर में कमी रखी नहीं दिखाउन में कमी रखी नहीं कोई डोरे जंतर में कमी रखी नहीं वो तो माइत्रो फर्ज बने क्यों के खने पैसा नहीं टको नहीं लेन नहीं मोटो इलाज माऊ होयो को नहीं माई तो हार नहीं है फिर माई तो हार बैठ गयो कमो बेटो प्यारो होया करे 2 पैसा खने तो है दाऊ जो छुपा लेने कोई कुछ छुपा अब तो तर बड़ी होती है ताबर थोड़ी है. Separateness is many, but this is a narrative of the other way. ये जिंदगी मर जिंदगी ये लिखोड़ी मर जहाँ पर ये जिंदगी आगे. A change towards claiming control over one's own life and the possibilities it brings. जिंदगी तो पूरी करनी है ही ठीक है ना. With the help of Project Drishti, Urmul ventured to catalyze the social and economical rehabilitation of people living with any kind of disabilities in the extreme of Western Rajasthan. तो भाई बच्चा री सुनाई हुई सी 3-3 4-4 बच्चा हैं आज एक बच्चों ही दो रो विकलांग तो 4-4 बच्चा विकलांग दो रही बहुत समणा दो रही फिर यहाँ स्कूल में सुनाई हुई कौन स्कूल ले गया तो मैडम बोली मैं तो एडमिशन ही करा कौन बच्चा रो बच्चा ने कट्ठे धरा में कट्ठे रखा यहाँ ने तो रखा यहाँ बच्चा ने जगह कौन स्कूल में इतनी बड़ी स्कूल है यहाँ बच्चा ने कटी जगह मिल सी विकलांग बच्चा मारे जल में सादा बच्चा ही मारे जल में जगह नहीं को करानी फिर इन्हें भी ने जाहिर ने फोन करे तो कोई सुनाई कौन करे आज गरीब बच्चे री विकलांग री कौन करे. पहली से मैं छोटो हो ना 4-5 साल को ना मैं आंधो हो ना घर का जानता भाई वो आंधो है क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. गांव में आने जाने बहुत तकलीफ होती थी हम तो जाता ही नहीं था. पहले तो हमारे पिताजी उन्हें ले जाते नहीं था भाई वो आंधो है इनके आप गाँव में ले जाके मुझे क्यों भाई वो आंधो है पढ़ नहीं सकता एडमिशन मैं नहीं लेता बीकानेर भेजो या और कहीं भेजो गए. हमने ऑब्जेक्शन जरूर किया था इस बात का कि भाई ये बच्चे इतने बच्चों के साथ में कैसे मतलब बैठ पाएंगे सीखेंगे इन पर ध्यान कैसे देंगे ये सारी चीज़ें थी हमारी समस्याएं.
लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, ये अदर बच्चों के साथ कैसे बैठे हैं, कोशिश करेंगे। This project is a perfect example of realizing UNCRPD at the grassroots level. It has helped hundreds of disabled people, promotes local partnership and community engagement, thereby ensuring sustainable change which can be scaled up. यह प्रोजेक्ट हमने 2007 में शुरू किया और विभिन्न संस्थाओं के साथ, सरकार के साथ, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस वक्त किसी के पास भी यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं था कि किस गांव में किस तरह की विकलांगता के कितने लोग हैं, और उसके लिए पूरे को आयोजन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने एक वृहद सर्वे बीकानेर जिले के गांव-गांव में किया, और आज खुशी की बात है कि एक बहुत अच्छा डेटा बैंक हमारे पास उपलब्ध है जिसे सरकार भी उपयोग कर रही है। जिस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया उस समय सीधा था कि स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ उनको जोड़ा जाए। Lack of awareness among the communities we have been facing. These are the major challenges in the Project Drishti. We facilitated the mainstreaming of the children with visual impairment in receiving equitable education, ensured access to sustainable livelihood schemes, create social networking with persons with disabilities to advocate for their rights and entitlements. Then key stakeholders engagement in facilitating the social inclusion of the persons with disabilities. So these were the basic objectives to ensure that we have a sustainable project in the district of Bikaner. बे साहब हमारे पग खड़ो होना आदमी दो आगे से आगे बढ़े नहीं, बढ़ने से अनुसार आदमी बीजे आदमी ने बड़ मिले बरोबर हिम्मत मत है, लान मिलना है, सर्टिफिकेट बनना है, बहुत आराम हो गया, मिले पग मत खड़ा हो गया। 2000 बार में हमारे दुकान 10-20 हज़ार रुपया लगा, बार भाई ने दुकान और करवा दिया। वो आगे से आगे काम बढ़ाने मारे तो कोशिश बढ़ाने वही बढ़े तो चौक और मारे करने बढ़े तो चौक। आप अच्छी ज़िंदगी जिए, अगर भगवान ने आपको विकलांग बना दिया है तो वो तो भगवान की मर्ज़ी है, बाकी कुछ तो इंसान खुद की भी मर्ज़ी रखे। मैं तो बचपन से ही विकलांग हूँ, बाकी मैं अपने पे हूँ, मैं अपना काम अपनी जीविका आराम से चला सकती हूँ। बेटी को भी पढ़ने के लिए बीकानेर भेजती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, दूसरों का खाना भी बनाती हूँ, कचौड़ी बनाती हूँ, उसके बाद मैं नींद नहीं लेती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। One of the biggest change has been at the community level. The society that always used to perceive that disabled people cannot do anything in life and they are a waste to the society have now started realizing that they too can be productive members of the society. पहले मेरे में तो बहुत भी ज़्यादा आ गया। पहले तो कुछ घर से निकलता तो पूरा भी मतलब यहाँ सोच में रहता कि मैं खड्डे में गिर जाऊँगा और गिर जाऊँ। अभी हमारा हाव है कि हम मतलब हर जगह पर जा सकता हूँ, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। दुकानदारी हम हर किसी भी हर चीज़ दे सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। कितने का लोट 1000 का लोट देता है, 1 रुपये का सामान देता है, उसको भी हम 999 रुपये वापस दे देते हैं। तो यार बाद में स्कूल हरु कराया,
इन्हें जयपुर ले गया, इन्हें गुजरात ले गया, बड़ा बड़ा डायरेक्टर आया अमेरिका हाँ देखा, बच्चों ने 7 दिन वो तो रखे, हिम्मत बढ़ गई, बच्चा रोटी खावे, बच्चों ने स्कूल में ला। दापू और किशन दोनों ही कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं। और जैसे अपने हिंदी की बात करें, मैं हिंदी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। बच्चे पूछते हैं सर ये रथ किस तरह का होता होगा, ये हाथी किस तरह का होता होगा, या मतलब और भी तरह की जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात आती है, तब भी इनके रहती है कि सर ये क्या होता होगा, कैसा होता होगा। जैसे किशन है मोबाइल रखता है और ये पता नहीं किस तरह से इसका एडजस्टमेंट है, कैसे ये करता है, समझ से बाहर है, क्योंकि दृष्टि इनके लिए मेरे ख्याल से उस पर कुछ है नहीं, फिर भी उस मोबाइल से कॉल करना और करना ये करता है। सुस्त था पहले बहुत, तो काफ़ी चंचल, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है स्कूल में आने के बाद। दूसरे बच्चों के साथ भी काफ़ी खेलने की कोशिश करता है। तो अब मैं ब्रेन पढ़ने लगे तो ना टीचर आपके घर हमारा रोज रोया करके 5वीं क्लास ना में 5 किताब पढ़नी को नहीं, मैं सारों किताब पढ़ने आऊँगा, गुजरी बराबर हम पाठ पढ़ लेते हैं। It was a sheer delight to see how well inclusion takes place in far off unreached villages of Bikaner with support of Urmul. If we can do it there, we can do it anywhere. And I think we really need to replicate the efforts that are put in those areas in other parts of Rajasthan so that many more children can also get mainstream. सरियो हजारी गुलेरो फूले, हजारी गुलेरो फूले, मैं चमक बीजेली हो जीरा बनो सदन मारीनी जने परणी जने मदी जारी आशा सुन सिगड़ो जेरियो। कैमरे में दिखता है जैसे मुझे ऐसे ही दिखता है, और कैमरे में मुझे फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है फ़ोटो खींचना। पहले मैं रेत देखती थी, तभी ऐसी गहरी मतलब गहरा कलर नहीं दिखता था, इसका धुंधला दिखता था, जैसे ये पीली मिट्टी है। अभी ये रेत पीली मिट्टी तो है ही नहीं, और पीली मिट्टी दिखती थी, और अभी मुझे इसका रंग एकदम साफ दिख रहा है। और ये पेड़ जैसे ज़्यादा काला कलर में दिखते थे, ब्लैक कलर में, और अभी मुझे बिल्कुल हरे कलर में दिखते हैं, और अभी मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है इसे देखकर। अब मैं हर कोई वस्तु, हर कोई चीज़ एकदम साफ देख सकती हूँ, जैसे और कोई भी देख सकता है। मैं भी सोचती थी कि अब मेरी आंखें ठीक नहीं होगी, फिर मेरी आंखें तो ठीक हो गई। अभी मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो नहीं देख सकते, मैं तो अब देख सकती हूँ, पर और काफ़ी लोग हैं वो नहीं देख सकते। खाने तक नहीं था हमारे पास, इतनी मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी समझो मैंने तो अपना रोज़गार किसी न किसी तरह से, और जैसे जिला विकलांग क्षेत्र के लोगों ने मेरी मदद की है तो उससे मैंने अपना रोज़गार तो चला। लेकिन हर एक विकलांग को सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको रोज़गार से जोड़ा जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे सरकारी नौकरी ही दी जाए। जब से जिला विकलांग अधिकार मंच से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत सी योजनाओं के बारे में पता चला है, बहुत सी सुविधाएं मिली हैं उनसे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब डिप्रेशन के मरीज हैं, उनका सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना और उनकी पेंशन शुरू करवानी, वो सब जिला विकलांग अधिकार मंच की तरफ से ही हुआ है। तो हमें एक उम्मीद सी बनती है, एक हौसला आता है। लेकिन अगर घर में ही एक विकलांग हमेशा रहे तो उसमें खुद से ये हीन भावना आ जाती है कि वो किसी काम का नहीं है, और वो किसी का, और जब बाहर जाते हैं देखते हैं हम तो इतना हौसला और हिम्मत आती है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं।
जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है उसके बारे में बताया, उसका आवेदन इन्होंने ही करवाया। जो भी कागजी कार्रवाई थी वो सब इन्हीं के जरिए हुई। अगर ऐसी संस्थाएं मतलब और जगहों पर नहीं हो तो एक विकलांग को कभी पता नहीं चलता कि उसके अधिकार क्या हैं और उसके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार बना रही है और उनका कैसे लाभ उठाया जाए। The PWDs was conducted to motivate them to come forward and come out of their homes so that they come up and fight for their rights and entitlements. Further, to strengthen the persons with disabilities and empower them, a group of persons with disabilities, they were formed together and formed into a DPO, which is the Disabled People's Organization. 1500-1600 सदस्य हमने विकलांग मंच में रजिस्ट्रेशन करवा दिए। तो इनमें से पेंशन तो लगभग 90% लोगों की हो गई। यहाँ सर्वे में मेरे को भी लिया गया, तो मैं सर्वे में हुई तो मेरे को यहाँ से बताया गया कि मीटिंग होती है। तो मैंने जैसे मेरे को बताया कि मीटिंग होती है आप आ सकते हो क्या, मैंने कहा क्यों नहीं आ सकती, मैं ज़रूर आ सकती हूँ। तो उस दिन से ही मैंने मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी और जब एक साथ पूरे बीकानेर के लोगों को एक साथ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 5 साल से लोन के चक्कर में घूम रहा था। मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी ये फार्म भरा लेकिन वो लोन पास नहीं हुआ। अभी संस्था में जैसे जुड़ा हूँ 2 महीने हुए हैं तो जिससे मेरा लोन पास हो गया। सबसे बड़ा फायदा मेरे को यह है, पहले सूरत में था, अभी मैं घर आके थोड़े धंधा कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मेरे को फायदा हुआ है। This group of people that has been the critical mass that is formed has led to a lot of empowerment among the persons with disabilities and also supported the advocacy activities at the district level. It has not only brought about an empowerment among the person with disability, but it has bridged the gap between the system and the people. अब का वर्षा मिल जाए पहले था कौन मैं एडवांस विकलांग भाई बोली जो कौन बाबू भाई मारे पेंशन रुपया मिले देखो भाई मारो छोटो मोटो खर्चो काट जा चा चीनी दवाई पानी लिया मांगनी को पड़े भाई। With the coming together of URMUL, of the government agencies and of the banks, which was an exercise driven in Bikaner, we were able to achieve a huge increase in the beneficiaries. For instance, up to 2011-12, we had delivered loans to just about 20 people. And with this partnership, we actually managed to give loans last year to 201 differently abled persons, which is a massive increase in just about 1 year. And the main reason for this was that we managed to bring all the people, all the necessary agencies at one level. Change in policies, decision making, and even at the legal and legislation angles. So that is the kind of change that is happening at the, with this project. And as the late legend Mother Teresa once said, there is a terrible hunger for love. We all experience that in our lives, the pain, the loneliness. We must have the courage to recognize it. The poor you may have right in your own family. Find them, love them,